Welcome back to Lit Up with Annie. And today we are going to talk about a very different kind of a work, which is Shakuntala by Kalidas. Abhigyanam Shakuntalam. That's also what it is spelled as. And it is one of the greatest Sanskrit plays ever written, and it translates to the recognition of Shakuntala. ये जो है ना अभिज्ञानम शकुंतलम, तो अभिज्ञानम it is recognition and Shakuntala is Shakuntala, and the play is in 7 acts. ये एक महाभारत के एपिसोड के ऊपर बेस्ड है. ऑब्वियसली कालिदास ने और एलैबोरेट किया है और रोमांटिसाइज कर दिया है इसको अपनी डेप्थ्स ऐड करके एंड अपनी पोएटिक ब्यूटी ऐड करके, ऑफ कोर्स. ठीक है. तो अभी अभी आपने देखा होगा एचपीएससी का एक नया सिलेबस भी उन्होंने निकाला है, तो उसमें भी डिटेल में पढ़ने के लिए ये वाला वर्क दिया हुआ है. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन वी प्रिपेयरिंग फॉर नेट, सेट और एनी अदर English literature or literatures in English exam. So yes, this is an important work, and we are going to talk about this work in this session today. Also, if you want to take the full subscription, only a few months is left now, so you can come revise with me and I'll give you access to the entire course. And I think 2 months ka bhi agar if you want to take the subscription, it will be open for you. So details are in the description box. You can contact me over Telegram or over WhatsApp, whichever is comfortable for you. Let's start. See, this is also how it is translated as, or this is how it is also spelled as, sorry. Abhigyana Shakuntalam. And it translates to the recognition of Shakuntala. Abhigyana is किसी चीज़ का ज्ञान हो जाना, recognition होनी, token of recognition. And Shakuntala is the name of the heroine of the play. She was the daughter of a sage, Viswamitra, and a celestial nymph, Menika. Okay. Now, about the author, Kalidas. He was a classical Sanskrit poet and a dramatist, believed to have lived around 4th or 5th century. He was known for his writing, beautiful writing, vivid nature imagery, and emotional depth. इनके और भी वर्क्स हैं, जैसे कि मेघदूतम, द क्लाउड मैसेंजर, रघुवंशा, and others. So many works, of course, written in Sanskrit. Source and inspiration, I just told you that it is based on a tale from Mahabharata, but Kalidas has expanded it, reshaped it with emotional nuances, dramatic structure, lyrical beauty. So he had added his own romanticism to the tale. Divine intervention add कर दिया है, psychological depth भी है, of course. 7 acts में ये play है. Unlike the western जो पर्टिकुलर एक हम देखते हैं ना प्लेस का, 5 एक्ट का प्लेस रहे हैं मैक्सिमम, जैसे शेक्सपियर को देख लो या ग्रीक प्लेस देख लो. अनलाइक दैट, दिस वन इज 7 एक्ट प्ले. इट ऑल्सो फॉलोज द नाट्य शास्त्र, जिसकी हमने अभी बात कर ली है ऑलरेडी. इट्स अ नाटका, a heroic romance with a royal hero and some divine elements. तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड ऑफ द वर्क. Who are the main characters? We have Shakuntala. She is an innocent, a very beautiful girl, जो एक फॉरेस्ट आश्रम में कन्वा, एक सेज होते हैं कन्वा, उनकी अडॉप्टेड डॉटर होती हैं ये, तो वहाँ पे ये पली बड़ी रहती हैं. We have King Dushyanta, who's a very noble spirit, who's a very valiant king, and he falls in love with Shakuntala. Kanva ऋषि शकुंतला का के फॉस्टर फादर. दुर्वासा, आई थिंक आपने ये जो नेम्स हैं पहले सुने होंगे, ऑफ कोर्स इफ यू फेमिलियर विद द स्टोरी ऑफ महाभारत. दुर्वासा ऋषि थे, एक सेज थे, बहुत गुस्से के लिए माने जाते थे. ही वुड कर्स एवरीबडी, जिसको जो मिलता था. अ वेरी इरिटेबल सेज हुज कर्स सेट्स द मेन प्लॉट इन मोशन. तो इनके ही कर्स की वजह से जो पूरा मेन प्लॉट है वो एक्शन लेता है. देन वी हैव Madhavya, the comic companion of Dushyanta, and we have Marika, who's a celestial being who helps in the resolution of the plot.
तो एक्ट वाइज चलते हैं, आपको मैं समरी देती हूँ एक्ट्स की. एक्ट वन में क्या होता है ना कि जो ये राजा है दुष्यंता, ये हंटिंग के लिए निकले होते हैं. और वहाँ पे ही ये जो कन्वा का एक हर्मिटेज होता है, वो बाई चांस वहाँ एंटर कर जाते हैं. और वहाँ पे इनको शकुंतला मिल जाती है. शकुंतला को देखते हैं एंड ही इज इंस्टेंटली कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी, बाय हर ग्रेस. और शकुंतला भी जब देखती है इनको, तो शी इज ऑल्सो ड्रॉन टू द किंग एंड द टू फॉल इन लव. सो शकुंतला का कंसेंट है ना. तो विद द कंसेंट ऑफ शकुंतला एंड ऑफ कोर्स द इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द एब्सेंट सेज, अभी सेज जो है वो यहाँ है नहीं, दे एंटर इनटू अ गंधर्वा, एक मैरिज सेरेमनी में वो एंटर कर जाते हैं. अ मैरिज विच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट. उसमें रिचुअल्स नहीं होते. गंधर्वा मैरिज में क्या होता है ना कि आप राजी मैं राजी, चलो हम वी हैव एंटर्ड इनटू अ गंधर्व मैरिज. So that's what happens in the first act. Okay. We move on to the act 2. We have the royal court and the love also deepens. Now here the scene shifts to Dushanta's court. Okay. And the king there is shown as a very wise and a very just ruler. बहुत अच्छा इंसान है. However, he's distracted and he's clearly in love, and he's all the time thinking about Shakuntala sitting. I think you can imagine people coming talking to him, लेकिन दुष्यंता तो अपने ही सपनों में है, thinking about Shakuntala all the time. So he cannot reveal also the secret of marriage because of political and royal protocols. So this happens in the second act. ये पूरा कोर्ट का सीन आता है. And Shakuntala is also lost in thoughts of her love, neglects to greet sage Durvasa. यहाँ पे आते हैं सेज दुर्वासा. और क्योंकि वो भी अपने ही थॉट्स में खोई हुई हैं, तो वो दुर्वासा को ग्रीट नहीं करती हैं. तो दुर्वासा इज लाइक एंग्री पर्सन, वो उसको कर्स कर देता है. द वन शी इज थिंकिंग ऑफ विल फॉरगेट हर. हाउ बैड ऑफ दुर्वासा. एक्ट 3 क्या होता है हर्मिटेज में. बैक एट हर्मिटेज, शकुंतला तो अभी हमने देखा, शकुंतला इज डीपली ऑफ कोर्स इन लव एंड डे ड्रीमिंग अबाउट दुष्यंत. इसी लव सिक स्टेट में वही मैंने जो आपको बताया कि वो दुर्वासा को ग्रीट नहीं कर पाती एंड दुर्वासा को इंसल्टेड फील होता है. तो दुर्वासा जी कर्स कर देते हैं कि तुम्हें तो जिसके बारे में सोच रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा. हाउएवर, अपॉन रियलाइजिंग शी वॉज लॉस्ट इन लव, the sage mitigates the curse. कि दुष्यंता will remember her if he sees a token of their love. तो ये एक चीज़ जो है वो ये बोल देता है कि दुष्यंता तुम्हें याद कर लेगा वापस अगर कोई एक ऐसा टोकन ऑफ लव हो तुम्हारे बीच में, वो देखे उसको याद आ जाएगी. एंड द कर्स ऑल्सो इंटेंसिफाइज. तो फ्रेंड्स ट्राई टू कंसोल शकुंतला हियर. द कर्स कैन बी रिवर्स्ड ओनली इफ दुष्यंता सीज द देर इज अ रिंग. जब वो एक मिलते हैं, एक्सचेंज की होगी, तो एक रिंग होती है ऑफ रिकग्निशन. तो वो देखेगा अगर दुष्यंता, तभी उसको याद आएगा सब कुछ. एक्ट 4 is like the separation, of course. So here Shakuntala actually becomes pregnant. सेज जो कन्वा है, उसके फादर, फॉस्टर फादर, जब वो वापस आते हैं तो उनको पता चलता है अबाउट द मैरिज. तो ही डिसाइड्स कि मैं अब शकुंतला को दुष्यंत के पैलेस में ऑफ कोर्स भेजूंगा बिकॉज शी इज बिकम प्रेग्नेंट एंड वॉट एवर गंधर. आप लोगों ने इफ यू एंटर्ड दिस मैरिज तो यू हैव टू गो. ऑन द जर्नी नाउ शकुंतला लूजेज द रिंग. हो गया पंगा. वो जो रिंग जिससे दुष्यंत वो सपोज टू फाइंड हर, वो सपोज टू रिमेंबर हर, वो गुम कर देती है. अब जब वो कोर्ट पहुंचती है, दुष्यंता कहता है तुम कौन हो, आई डोंट नो यू, ड्यू टू द कर्स. सो शकुंतला इज हार्ट ब्रोकन एंड शी इज ह्यूमिलिएटेड. So she's taken away by this celestial nymph to an ashram. Ashram होता है सेज मेरिका का, for her protection. ठीक है.
दिस इज वॉट हैपन्स. और जो रिंग है ना, उसको एक्चुअली एक फिश स्वॉलो कर लेती है जर्नी पे. शी लूजेज द रिंग वाइल शी इज बेदिंग इन द रिवर एंड इट इज स्वॉलोड बाय अ फिश. एक्ट 5 इज द फॉरगॉटन पास्ट. अब कोर्ट में एक फिशरमैन फाइंड्स द लॉस्ट रिंग इन द बेली ऑफ अ फिश और वो किंग के पास उसको ले आता है. जब दुष्यंत उस रिंग को देखता है तो दुष्यंत की मेमोरी वापस आ जाती है. एंड ही इज फिल्ड विद गिल्ट, ही इज फिल्ड विद सॉरो एंड ही इज फिल्ड विद दिस लॉन्गिंग फॉर शकुंतला. तो अब दुष्यंत निकल जाता है उसको ढूंढने के लिए. ओके, तो या, and of course, as I told you, she's taken away by the celestial nymph also to protect her. A fisherman finds the ring in the fish's belly and brings it to the king. The king suddenly remembers everything and is filled with remorse and grief. Then, after that, in the next act, Dushyant is tormented by regret, by this yearning कि मैंने ये क्या कर दिया, कहाँ भेज दिया शकुंतला को. She was also pregnant. Meanwhile, शकुंतला वो जो हर्मिटेज में रह रही है सेज मेरिका के, एंड शी गिव्स बर्थ टू अ सन. सन का नाम होता है भरत. द किंग इज टेकन टू द सेलेस्टियल रियल्म वेयर ही फाइंड्स शकुंतला विद देयर सन भरत. ठीक है. एंड भरत जो है, ही ग्रोज अप टू बी अ वेरी ब्रेव एंड अ वेरी फियरलेस चाइल्ड, प्लेइंग विद लायंस and other wild animals also. Recognition, forgiveness, reunion होता है. They return to earth. ये तो nymph उनको ले गई थी ना उसके पास. And Bharat is destined to be a great emperor. ये एक्ट 7 में होता है. ठीक है, reunion और recognition. तो दुष्यंत जब उस celestial hermitage में पहुंचता है वहाँ पे उसको वो मिल जाते हैं of course. And he's also impressed by the child's courage, by the child's charm, and he's astonished to learn that he is his own son. So finally, he reunites with Shakuntala, and the curse is lifted completely. The play ends on a happy note with the family united and the prophecy of Bharat becoming a great emperor being fulfilled. वो भी it's in progress. This is the play. It's a very nice story, simple story. There is the theme of love, separation, memory, recognition, fate, and of course divine intervention is also there. है ना? Nature is there, spirituality is there. So this is about the play Shakuntala by Kalidas. I hope you liked it. Let me know in the comments about the story, about how did you find it, about what else do you analyze from the work, and I would love to hear your thoughts. Once again, if you wish to take the subscription, please let me know. You can join our classes and you will have a good revision. You will get access to the classes. तो आप अपनी speed से अपनी space में देख सकते हो उनको. MCQs भी हम कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगा. So thank you and I will see you in the next session. And all the best, especially वो of course नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, HPSC का भी आने वाला है. तो मेरे स्टूडेंट्स जो HPSC का भी देने वाले हैं एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो. अच्छे से पढ़ो. जो आपको सिलेबस मिला है अभी नया, उसमें जो वर्क्स हैं उनको डिटेल में पढ़ो. उसमें लास्ट में ये भी लिखा है कि हिस्ट्री और बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस आएंगे. सो इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग राउटलेज, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग दैट and you will definitely be benefited. Okay? Any questions for me? Please let me know. I'm ready to help.